Now, the political discourse has hit its lowest now with another attack by the Congress President Mallikarjun Kharge on the Chief Minister Yogi Adityanath. This time he is called the UP Chief Minister Atankwadi. Let's listen in. आप फिर वही बात करते हैं, वो हमारे साधु महाराज है क्या नाम उनका, योगी आदित्यनाथ, वो तो ऊपर से साधुओं का वेश खेलते हैं। अरे मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे। मैंने उसी में परसों मुंबई में मीटिंग हुई थी तो कहा, भाई एक काम करो, तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। बाटो काटो में क्यों करे? हाँ, लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आप एक मठ के एक व्यवस्थापक हो और आप सब संसार छोड़ के क्या बोलते गेरुआ कपड़ा। So you've just heard that entire response that has come in from Mallikarjun Kharge, who actually goes on to say that Yogi Adityanath speaks like an Atankwadi, a terrorist. And not just this, remember, much like Akhilesh Yadav in the past, he has also hit out at the fact that he wears a saffron. And he says also that such people do not deserve to be in politics. I quickly want to get in our colleague Niyamika, who's also joining us right now on this edition of the news. You know, Niyamika, the timing is important because clearly you have high-stakes election, but the point is how low will political parties really fall down to when it comes to a few votes? What explains this particular tirade against the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath by Mallikarjun Kharge? Well, indeed, as it is a personal comment which is being made by the Congress President Mallikarjun Kharge against the UP Chief Minister Yogi Adityanath, as we have seen that how the Congress party has been continuously opposing the UP Chief Minister's statement, butting it to cutting it, and after that only, now this is a new remark which is coming on the part of the Congress President Mallikarjun Kharge, where he is questioning right now about the attire of the UP Chief Minister, as he is saying that on one side there are some leaders who are wearing the saffron clothes, but on the other side they are also spreading hatred amongst the people of our country, and for that reason now we have seen that how the other Congress leaders are also supporting this remark of the Congress President Mallikarjun Kharge, where in fact we have also spoken to the Congress party's Lok Sabha MP Tariq Anwar, in which he has stated particularly, अगर आप योगी हैं तो आप भोगी नहीं हो सकते So that kind of remark is coming in on the part of the Congress leaders itself. They are supporting what is being said by Congress President Mallikarjun Kharge, because now recently also we have seen that how Congress President has given this statement in Jharkhand, where he has said that the language which is being used by the UP Chief Minister, that is basically not a language of a fear, but in fact this is basically a language of a terrorist which cannot be supported, because such kind of language can only be used when you are trying to spread hatred all across the country, which is not acceptable at all. All right, Niyamika, for the moment, just stay with us. Let's also play out the very first response that has come in from the BJP on, again, that law that has come in from the Congress directed at the Uttar Pradesh Chief Minister. हिंदू और सनातन का अपमान, यही कांग्रेस की पहचान। अब खड़गे जी, जिन्होंने कहा कि गेरुआ वस्त्र वाले लोग राजनीति में ना आए, साधु संत राजनीति में ना आए, मौलवी मौलानाओं के लिए कुछ नहीं बोला। उन्होंने अब बोला है कि योगी जी मतलब कि साधु संत जो है वो आतंकी की भाषा बोलते हैं। मठाधीश माफिया भी लगता है समाजवादी पार्टी को, मठाधीश बांटेंगे काटेंगे लगता है। कांग्रेस पार्टी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना, राम मंदिर बेकार, राम मंदिर को लटकाना भटकाना, और अब सनातन को बीमारी और सनातन को समाप्त करने के बाद खड़गे जी बोलते हैं कि योगी जी, जो कि गोरखनाथ पीठ के मठाधीश है, जो कि बहुत ही बड़े
धार्मिक ओहदे पर बैठे हैं वो एक आतंकी की तरह बोलते हैं। ये इनकी सोच है। कभी किसी इमाम या मौलाना को बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। ये हिंदू विरोधी चेहरा है कांग्रेस का, क्योंकि इनकी मानसिकता है हिंदू को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। इसी को कहते हैं वोट जिहाद। वोट जिहाद के लिए हिंदू धार्मिक संस्थानों का, आस्था का लगातार अपमान करना ये कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। हिंदू और सनातन का All right, so you heard the first response that has come in from the BJP. Let's get both Niyamika and Adib are both joining us live right now, and they're tracking that entire story for us. I want to see if we can quickly get in Adib first before we get in Niyamika. Now, Adib, what explains, this particular targeting of the Uttar Pradesh Chief Minister? He is the same Chief Minister who actually started this entire war cry of batenge to katenge. Has that, spooked the opposition so much that right from an Akhilesh Yadav to the Congress, he has become their number one target? Well, definitely, Deepti, as you mentioned, Chief Minister Yogi Adityanath was the first one to give the slogan of batenge to katenge, and after that he got support from RSS. In fact, he got support from Okay, Prime Minister Adib, Modi. apologies. When I'm he just gave a interrupting you similar here type of because slogan. I'm told we have IP Singh Saab, the national spokesperson of the SP, also joining us. Singh Saab, thank you for your time and thank you for speaking to us here. अब मुझे बताइए किस तरह की भाषा का इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को? वो सही बुला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर 20 से ज्यादा मुकदमे थे, जिसमें 302 कत्ल का भी गंभीर आरोप था, और उसके चलते 2 आईपीएस अफसरों को उन्होंने टर्मिनेट किया है। उसमें अमिताभ ठाकुर और एक अभी जयवीर सिंह करके हैं, उन्हें हटाया गया है। और उनका किस तरह का चरित्र रहा है उत्तर प्रदेश की जनता नहीं सिंह साहब, अगर आपको लगता है कि वो आतंकवादी हैं, आप कोर्ट में जाके ये केसेस को पुश करिए ना। देखिए क्या होता है कि आप लोग अपना पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पहले अखिलेश यादव कहते हैं मठाधीश माफिया की तरह नजर आते हैं, उनके कपड़ों को देखिए, और अब आप कह रहे हैं कि आतंकवादी भी हैं। तो आप तो मतलब सारी लैंग्वेज की हम मर्यादा भूलकर यहीं पर कर्नाटक में एक मंत्री है जो जेडीएस के या कुमारस्वामी को कालिया कहते हैं, आज आतंकवादी कहते हैं। तो क्या भाषा की सर कोई मर्यादा नहीं रह गई है अब? ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वो आतंकवादी हैं। हाँ, तो आप कंडेम करते हैं, आप कहेंगे कि इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए? सवाल ये है कि जो जिस तरह का आचरण करेगा वो बटेंगे तो कटेंगे, और लगातार जिस तरह की वो हिंसक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हाँ। तालिबानी संस्कृति को जिस तरह से उत्तर प्रदेश में और देश में वो बढ़ावा दे रहे हैं। कल वो मिर्जापुर में थे, उस फुटेज दिखाइए, 161 लोग उस रैली में थे, उससे ज्यादा 3000 पुलिस के लोग थे। आज ब्रांड उन्हें बनाकर देश में बीजेपी मोदी को जिस तरह से 2000 गोधरा कांड के बाद घुमाना शुरू किया, गुजरात दंगे के बाद, उसी तरह से आज योगी आदित्यनाथ को बीजेपी और आरएसएस पूरे देश में उन्हें ब्रांड बनाकर नहीं, तो आपको ये दिक्कत है ना सर। अब आपने मान लिया कि दिक्कत आपको ये है कि योगी आदित्यनाथ एक ऐसा ब्रांड इस समय बन चुके हैं हिंदुत्व का, या एक हिंदू मैस्कट ऐसे बन गए हैं जिससे एसपी को लगता है कि उनका पीडीए भी धाराशायी हो जाएगा। अब मेरे साथ रहिएगा। वी हैव बीजेपी's अनिला सिंह साहब, आती हूँ आपके पास। बीजेपी's अनिला सिंह joining us and also VHP's विनोद बंसल, both of them have been patiently holding the phone line. विनोद बंसल जी, पहले आपके पास आती हूँ। सर, आपने अभी सिंह साहब को सुना होगा, वो कहते हैं कि क्या गलत का है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ऑपोजिशन को लगता है वाकई में आतंकवादी हैं, चाहे उनके कपड़ों की बात हो, चाहे उनकी भाषा की बात हो। देखिए, आप पहले भगवा को, फिर संतों को, फिर हिंदुओं को आतंकवादी बताना और आतंकवादी होने का ठप्पा लगाना, ये कांग्रेस और कांग्रेस की कोख में से जन्मे जितने भी राजनेता और राजनीतिक विचारधाराएं हैं, वो सब देश के अंदर बड़े लंबे समय से करती चली आ रही है। जो काम मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया, और उसके बाद में स्वाधीनता की बात बनी, केंद्र की सरकारों ने किया, वही उस बात को अब ये जो कांग्रेस के अध्यक्ष और ये जो अपना इंडी अलायंस के जो गठबंधन के गैंग है, ये वो पूरी गैंग उसी काम को कर रही है। अब देखिए, पिछले इलेक्शन में जिस तरह हमने देखा था आम चुनावों में, किस तरह से सनातन को नेस्तनाबूद करने की एक बड़ी मुहिम चली थी। कोई डेंगू कह रहा था, कोई मलेरिया कह रहा था, कोई उसको समाप्त करने की बात कर रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। उस समय प्रियंक खड़गे ने उनका समर्थन किया था, लेकिन तब तक जनता ये समझ रही थी चलो यार बच्चों वाली बातें हैं, शायद हो सकता है कि ये सब बाद में समझ जाएंगे।
लेकिन अब तो उनका जो गैंग का जो सरगना है जी वही बोल रहा है, तो उससे तो सीधे से साफ जाहिर होता है कि उनके मन का जो मैल है भगवा के प्रति, गेरुआ के प्रति जो शब्दों का प्रयोग किया, आप ध्यान दीजिए उनमें। कल भी जो है ना, ये जो खड़गे साहब ने जो कहा कि भाई गेरुआ को उतार देना चाहिए, श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए, इसका मतलब ये चाहते हैं कि हमारे पूज्य संत जो है ना पादरी बन जाएं। इनकी एक मानसिकता देखिए, ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज के हाथों की जो बॉल बने हुए हैं ये लोग, वो जो सोनिया जी जो कहती हैं वो ये खड़गे जी करते हैं। दूसरी बात ये बताइए कि ये कहते हैं कि भाई या तो श्वेत वस्त्र धारण करो और नहीं तो राजनीति से संन्यास ले जाओ। थ्रो देम आउट, व्हाट द वर्ड ही यूज्ड इज, थ्रो देम आउट ऑफ द पॉलिटिक्स। अरे भाई तुम्हारी क्या औकात है? कुछ संतों को तुम बाहर करोगे? संतों के इस देश को, इस भारतीय संस्कृति को मानने वाली वो भारतीय परंपरा जिनके कारण जीवित हैं, आज मेरा भारत जिसकी वजह से महान है, वो संत परंपरा है। इनको तो गर्व होना चाहिए कि एक पूज्य संत कम से कम पॉलिटिक्स में आया। आप मुझे बताइए, जब संतों की पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो 1953 में सबसे पहले जो है ना, वो जो भारत साधु समाज की स्थापना किसने की थी? इन्हीं के पूजनीय वो नेहरू चाचा थे ना, इन्होंने बनाया था भारत साधु समाज, जिसके कि ये जो अध्यक्ष मुझे लगता है ये अपने स्वरूपानंद सरस्वती जी बनाए गए थे इन्होंने। राइट। और आप मुझे बताइए कि ये जो कांग्रेस है ना, ये जो कांग्रेस की जो बौखलाहट है इस लेवल तक पहुंच गई है, दे आर गोइंग अप टू द एक्सट्रीम एंड द हिंदू सोसाइटी विल नेवर forget this. All right, Vinod Bansal, IP Singh, appreciate both of you for joining us and sharing with us your perspective. Let me now